نادیہ صاحبہ کیا کہیں گی اس فیصلے پر؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ یقیناً ایک بہت میں کہوں گی بڑی خبر ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ جہاں تک عسکری اداروں کا معاملہ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں ان کی اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ضرور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کو اس وقت سزا سنائی گئی یا جس کے خلاف بھی کورٹ مارشل کا جو پورا آغاز کیا گیا تھا، یہ وہ شخص تھا جو کہ سابقہ حکومت کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ سابقہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، اور عمران خان کے بڑے ساتھی سمجھے جاتے تھے، اور ان کے خلاف یہ باتیں جو اب آج کی حکومت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کے جیسے کہ 9 مئی کیا گیا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاہے وہ ان کی سیاسی مداخلت کی بات ہو یا وہ 9 مئی کے سلسلے میں ہو، یہ فیلڈ کورٹ مارشل اس سلسلے میں نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن یہ دوسرے جو ٹاپ سٹی والے معاملات ہیں اس میں کیا جا رہا تھا۔ البتہ اس پوری سزا سے یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پوزیشن پر پہنچ چکے ہوں تو پھر بھی جب یہ ادارہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو میرا خیال سے یہ ایک میسج تو ہے اس ادارے کے لیے بھی اور بقیہ لوگوں کے لیے بھی، کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، شاید اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد، کیونکہ دیکھیں وہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور کور کمانڈر کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی رہ چکے ہیں، تو ہم نے سابقہ ڈی جی آئی کو بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی یا کوئی ڈس پلیزر شو کیا گیا انسٹیٹیوشن کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہاں تک نہج نہیں پہنچی تھی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ڈیولپنگ سٹوری بھی ہے اور میسج بھی ہے، لیکن جو بات سیاسی مداخلت کی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ابھی تک اس پر یہ معاملات آ کر نہیں کہیں رکتے نظر آتے، یعنی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے۔ اچھا نادیہ صاحبہ، اس فیصلے کے آپ پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات دیکھ رہی ہیں مستقبل قریب میں؟ میرے خیال سے تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت بڑا میسج ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جنرل فیض کا بڑا تعلق تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، وہ جنرل فیض کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جنرل باجوہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور سوال یہ اٹھ رہے تھے کہ معاملات اکیلے جنرل فیض کے نہیں بلکہ پھر جنرل باجوہ تک جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتوں قبل جب نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو جو لائے وہ ان کا تو احتساب ہو رہا ہے، لیکن لانے والوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا نیکسٹ وہ ہوں گے، تو یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ واقعی کسی اور کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اور سیاسی اثرات اس سے یہ ضرور مرتب ہوتے ہیں کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بالشمول پاکستان تحریک انصاف، ان کو یہ اب ایک میسج مل گیا ہے کہ جو ادارہ ہے وہ بے انتہا اسٹرانگ ہے، جو نظام ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور جو نظام چاہے گا اسی طرح سے سب کو کرنا پڑے گا اور اسی طرح ایکٹ کرنا پڑے گا، یعنی جو سیاسی اسپیس ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ اچھا نادیہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ابھی جو حالیہ پریس کانفرنس تھی اس میں بھی کہہ دیا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ سیاست سے بالکل الگ ہے فوج، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اب جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اب پی ٹی آئی کے پاس اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک موقع ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ٹیبل پر آئے اور اپنے معاملات جو بھی ہیں ان کو سامنے رکھے؟ دیکھیں بالکل ان کے پاس موقع ضرور ہے، لیکن کیا حکومت ان سے اب مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات اب واضح ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اس وقت حکومت بالکل بھی مذاکرات خود نہیں کرنا چاہتی۔ یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتی، بلکہ اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ ان کو صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اس ادارے کا جو اب پوری انہوں نے اپنا پرسپیکٹو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جہاں سے شاید ایسا لگتا ہے کہ معاملات اب کہیں بھی مذاکرات تک بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چند معقول سیاستدان انکلوڈنگ
बैरिस्टर गौहर बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो बनाया गया उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बातचीत करनी होगी, क्योंकि अगर मामलात और खराब हुए तो एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खराब होंगे। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सरसाइज करने की क्या वाकई संजीदा कोशिश करती है मुज़ाकरात की, और फिर उसके बाद बॉल जो है वो फिर हुकूमत की कोर्ट में आ जाएगी और उनको वाज़ेह तौर पर सामने आकर ये कहना पड़ेगा कि हम कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन नादिया साहिबा, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौक़िफ़ है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, उसका क्या होगा? मेरे ख्याल से अब वो चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब मैं नहीं समझती कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे मिलकर बातचीत करनी है, और उनको ये वाज़ेह है कि बातचीत जो करनी है अगर वो हुकूमत से भी कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी, यानी वो उनका मौक़िफ़ पहुंचा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तो देखिए दोनों अतराफ से, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों ने एक मैक्सिमम पोजीशन ली हुई है। अब उस मैक्सिमम पोजीशन को यहाँ से हटाने के लिए बीच में कोई ना कोई मीडिएटर जरूर होते हैं, तो वो हुकूमत का फर्ज भी है कि वो सियासी टेम्परेचर को कम करे अगर तहरीक इंसाफ चाहती है। तो मैं फिर कहूंगी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त ओनस ज्यादा है कि वो राजी हो, और उसके बाद अगर जब वो राजी हो और माकूल मुज़ाकरात के लिए तैयार हो तो फिर उसके बाद जो है कोर्ट जो बॉल होगी वो फिर हुकूमत के कोर्ट में होगी और पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा नादिया साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जो केसेस हैं, 9 मई का जो वाक़यात हैं, उनसे लाताल्लुकी का इजहार करे तो बात शायद आगे बढ़ सकती है। क्या ऐसा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये उनके लिए अब बहुत बड़ा है। देखिए अभी तक जितनी भी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई हैं उस पे वाज़ेह तौर पर जो इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो कुछ इस तरह के हैं कि वो लीडरशिप से अपने आप को अलग करें, उस बयानिए से अपने आप को अलग करें और उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। अब मौजूदा क़यादत क्या बयानिए का बोझ उठाने के लिए तैयार है या वो हर हाल में अपने लीडर के साथ खड़ी रहने के लिए तैयार है, ये तो न मैं बता सकती हूँ ना आप, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि वो किस नहज मामलात जा रहे हैं। क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद माजरत एनसीएम की तर्ज की तरह एक एनसीएम पाकिस्तान बना दी जाए, और बड़े वाज़ेह तौर पे फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आता है इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और जो मुज़ाकरात के हक में हैं और टेम्परेचर कम करने की, वो भी इस किस्म की बात करते हैं। लेकिन ये मामला एनसीएम पाकिस्तान की नौयत का इसलिए नहीं कंसिडर किया जा सकता कि एनसीएम पाकिस्तान देखिए कुछ भी कहें एक रीजनल जमात थी, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फुटप्रिंट है या जो जमात है वो नेशनल जमात है। तो क्या एक नेशनल जमात को इस तरह से कोई तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनाई जा सकती है? ये जरा मुश्किल फेल है, ये इतना आसान अमल नहीं है। और माजी में इस किस्म के देखिए सारे फॉर्मुलेज हुए हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी और इसी तरह से नून से टूट के काफ बनी, बिल्कुल यहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन गई, इधर एनसीएम पाकिस्तान भी बन गई। तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कितना ये बोझ उठाने को तैयार हैं। अच्छा, तो नादिया साहिबा, इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ क्या हो सकता है? हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से हाल ही में जो नए मुंतखब अरकान हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलव्विस रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है? मैं नहीं समझती। अगर होना होता तो अब तक काफ़ी चीज़ों के हवाले से जाहिर ये बात हो चुकी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और शायद ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो जरूर है, लेकिन कभी हमने उनके भाई जो कि वजीर आजम है उनके बयान में कहीं नहीं सुना, न ही उनकी बेटी जो वजीर आला पंजाब है वो भी सिर्फ वहीं तक रुक जाती हैं जहां तक कोर्ट की बात हो, यानी कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त की जज साहिबान की या फिर जनरल फैज। इसके अलावा वो इससे आगे नहीं जाते। शायद उनको भी पता है कि ये शायद नामुमकिनात में से हो।
अच्छा नादिया जी, अब ये चूंकि फैसला तो आ गया, इस पर इनके ऊपर 4 इल्ज़ामात थे, वो साबित हुए, फैसला आ गया, अब ये आगे अपील का हक भी रखते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये बात भी कही गई कि जो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमला किया गया था, जो नुकसान पहुँचाया गया था, उसके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर उनको वहाँ से किसी तौर से रिलीफ मिलता है तो, और अगर यहाँ से एक ऐसा फैसला सामने आ जाता है तो किस नौयत का होगा, कितनी सख्त सज़ा दी जा सकती है? देखिए, अभी उनको इतनी सजा दी जा चुकी है और आगे क्या हो सकता है, ये तो इस सजा के लिए भी, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको याद होगा बहुत सारे लोग कयास सराइयाँ कर रहे थे कि उनको शायद उम्र कैद होगी, कोई कह रहा था कि उनको शायद फांसी दी जाए, शायद कुछ और हो उनके साथ। तो अभी ये कहना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस क्या हैं उनके अगेंस्ट, वो प्रूव होते हैं कि नहीं होते। लेकिन अलबत्ता आज की सजा से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि सजाएं सख्ती होंगी और किसी किस्म की कोई माफी नहीं है। अच्छा नादिया साहिबा, इस फैसले के बाद आपको सियासी टेम्परेचर जो है इस वक्त वो कम होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या रद्द अमल देती है। क्या वो जनरल फैज की सजा के हिमायत में बात करती है, उसके खिलाफ बात करती है, या फिर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करती है? अगर तो वो इसके खिलाफ बात करती है, जो कि मैं नहीं समझती कि वो करेगी, क्योंकि वो एक लाताल्लुकी सा इजहार कर रही है, उनको इल्म है कि मामलात उनके कहाँ तक खराब हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो इनके मुखालिफ जाते हैं इस फैसले के, तो फिर शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि गोया फिर वो ये एक तरह से एंडोर्समेंट देंगे कि ये उनके जनरल थे, और जो मेरे ख्याल से वो इस वक्त ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो ऐसा करेंगे। अच्छा नादिया जी, ये बताएगा, जब हमने देखा था कि जब फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद पीटीआई की जानिब से काफ़ी ज़्यादा वावेला भी मचाया गया और काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी होती रही। इनफैक्ट के बानी पीटीआई की जानिब से भी बारहा ये बात की गई कि ये जो सारा ड्रामा रचाया गया है, ये मेरे ख़िलाफ़ इनको वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुझे भी फ़ौजी अदालतों में घसीटा जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इनके जो बयानिया गढ़ा गया था वो तो दम तोड़ गया, अब आगे क्या हिकमत अमली, क्या लाया अमल अपना सकती है पीटीआई? देखिए, पीटीआई तो वही हिकमत अमली अपनाती है जो उनका लीडर कहता है, लेकिन क्योंकि अब इस वक्त इनकी मुलाकातें बंद हैं, तो पीटीआई का शायद सोशल मीडिया जो बाहर से ऑपरेट हो रहा है वो शायद कोई एक सख्त मौक़िफ़ अपना सकता है, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो मैं नहीं समझती कि जनरल फैज़ को लेकर किसी किस्म की कोई रद्द अमल का इजहार भी करेंगे। मेरे ख्याल से आज के फैसले से वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे। हो सकता है कि वो बैठ करके कोई इस पर अपनी ज़ाहिर मशावरत तो की जाएगी, पार्टी लेवल्स पे इस किस्म की मशावरत होती हैं, लेकिन अगर कोई फैसला 9 मई में मुलव्वस होने का आ जाता तो शायद फिर उनका रद्द अमल बनता भी था। अभी तो बात टॉप सिटी की भी हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर मैं नहीं समझती कि वो इस पे अपना कोई मौक़िफ़ देंगे भी। तो नादिया साहिबा, इस फैसले के बाद सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बरसे गौर तो इसका इंडिया दे चुके हैं, और आपने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे वो चाहते भी हैं, बल्कि उनका अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वो चाहते हैं कि ऑन बोर्ड लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात का तो वो कह चुके हैं, लेकिन असल मुज़ाकरात जो होने हैं वो हुकूमत के साथ उनको करने होंगे, यानी हुकूमत को ऑन बोर्ड करना होगा। और क्या तहरीक इंसाफ जो कि इत्तेहादी जमात है वो भी आने को तैयार है इनके साथ, ये भी वक्त बताएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते तो हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और चीज़ों को इतने आगे तक नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन क्या ये स्पेस पीपल्स पार्टी के पास है कि वो इस किस्म के फैसले ले सके? ये आने वाले वक्तों में हमें पता चल जाएगा। अच्छा नादिया साहिबा, फैसल वाडा साहब का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी इब्तिदा है और 9 मई के केसेस अभी बाकी हैं, तो मजीद कोई केसेस जो हैं वो जो फैसले हैं सामने आएंगे और वो सख्त हो सकते हैं इससे भी? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 9 मई तो एक स्टिकिंग पॉइंट है, और जब फैसल वाडा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके तर्जुमान है, क्योंकि वो नून लीग के तो नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी के हैं, तो यकीनन उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो एक तरह से विसल ब्लोअर की तरह सामने आते हैं और बताते हैं कि इस वक्त क्या सोचा जा रहा है और क्या कुछ हो सकता है। तो 9 मई तो आपने देखे, पहले ही आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान की तारीख में बहरगैस एक वायलेंट रिएक्शन तो आया था, उसमें कौन कौन मुलव्वस था, क्यों किया गया, वहां से बात आगे नहीं बढ़ी और सियासी मंजरनामे पे हमने देखा
یہ ایک سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے، اور وہی سٹینڈ سٹل آج تک ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کو تو میرے خیال سے عسکری ادارے نہیں چھوڑ سکتے، اس کو تو منطقی انجام تک انہوں نے پہنچانا ہی ہے.